Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Am I audible? Yes, sir. Okay. We have 3 more minutes to start our lecture. So up to that time, if you have some query or any doubt, then you can ask. So I think you don't have any query regarding previous lectures. Is No, it so? Really? Yes, sir. Okay. So let us start the today lecture. In yesterday's discussion, we have completed the solutions of Maxwell equations in vacuum or free space, where the free space or the vacuum was defined by zero current density and zero charge density. And so that with the implementation of these two criteria of vacuum, we have modified the Maxwell's equations. Okay, and then with the help of curl of third and fourth equations, we have computed, or we came to these two second order differential equations for B and E, because these two were showing the wave nature of the function. Okay, where mu naught epsilon naught is equivalent to 1 by V square. So we came to know that B and E, these two, propagate in the vacuum like a wave, and the behavior of B and E is equivalent to each other. And by this, we have come to know about the solution. Empirically, we have written a solution for E and B and computed the velocity of these waves, E waves and B waves. And this velocity of E and B waves were equal to the velocity of light. By this fact, Maxwell came to know that light is an electromagnetic wave. Okay. After that, we have put the solutions of E and B in Maxwell equations. Right. So first equation and second equation gave the information about the direction of E and B with respect to k vector, where the k vector was wave propagation vector. The value of k vector is 2 pi by lambda, and the direction of k vector is along the propagation of light or electromagnetic wave. So by this information, we came to know that electric field and magnetic field vibrate perpendicularly to the direction of electromagnetic wave, right? And then I have left the another thing to put electric field and magnetic field solution in third and fourth equation, right? So have you done it? Have you put electric field and magnetic field solution in third and fourth equation to get this information? So I've told you to put electric field and magnetic field in third and fourth equation. Let me do it for third equation. So in the third equation, when you put electric field as the E naught exponential iota k r minus omega t, then this is the situation. This is del operator cross E naught, the amplitude, multiplied by exponential part, equal to del over del t of B. B means B naught amplitude multiplied by exponential iota k. Okay. Then when you cross multiply these two vectors, then you will get this on left hand side. This is iota and this is I cap. So there is a difference between these two symbols. And on right hand side, when you differentiate this thing with respect to t, then you will get minus omega and iota outside. So this is minus iota omega outside the B thing. And this can be rearranged like this or this. Okay, iota will cancel this iota. So whenever third equation is considered, then you'll get k cross E equal to omega B. So this is totally the mathematical part, so you can do it well.
I suppose. Okay. Similarly, the fourth equation will give you this thing, k cross b equal to minus omega e. Okay. So what is the direction of cross product? The direction of cross product is perpendicular to the both vectors whose cross product is to be computed. Okay. It means the direction of b must be perpendicular to the direction of e and k both. And it shows that b and e and k are three mutually perpendicular vectors. And it also shows that when an electromagnetic wave propagates, then electric vector and magnetic vector vibrate vibrate in the direction perpendicular to k vector and with each other also. And this way we get the electromagnetic wave. Okay, so this is an electromagnetic wave. The light wave is propagating along y axis, y direction. Okay, and electric vector is vibrating along z axis, and magnetic vector is vibrating along x axis. So all three are mutually perpendicular. Okay, is that clear? Yes, sir. Suryans, Yes, sir. Suryans, Yes, sir. is this your first class? No, sir. Second, sir. Second class. Okay. So previous one, yesterday was the first class. Yes, sir. Okay. So are you getting the things? Yes, sir. I have completed, sir. Watched, sir, Okay, all the great, previous great, lectures great, of this chapter, sir. great. तो डाइवर्जेंस ग्रेडियंट कर लिए कंप्लीट कर लिए थे तुमने? Yes, sir. ओके, बहुत अच्छे. सो वी कैन मूव फॉरवर्ड. अच्छा, तो अब तक तुमने क्या पढ़ा? अब तक तुमने पढ़ा अबाउट द वैक्यूम. Okay, these four are Maxwell equations, and then when we deal with third and fourth equation with the help of curl of these equations, then we get these two equations, electric field equation and magnetic field equation. Then the solution of these equations are these. You know, this was the solution what we have imagined, where k and e are given by this thing. Similarly, B naught is also given by I cap B naught X plus J cap B naught Y plus K cap B naught Z. है ना? तो ये पता पड़ा. अगेन उसके बाद हमने क्या किया कि इन दोनों सॉल्यूशंस को वी हैव पुट इन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, एंड देन वी गॉट आयोटा k डॉट E इक्वल टू 0. अच्छा, इसमें देखो क्या हुआ, डेल डॉट E इक्वल टू 0 था, डेल की जगह पर आयोटा k आ गया ओनली. तो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का एक बड़ा आसान तरीका है, जस्ट रिप्लेस डेल ऑपरेटर, दिस डेल ऑपरेटर बाय आयोटा के. ठीक, कब? व्हेन यू आर डीलिंग विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओनली देन. ठीक, ये यूनिवर्सल नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ डील करने के लिए यू कैन रिप्लेस इजीली डेल ऑपरेटर विद आयोटा के. सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, आगे वाली बहुत आसान हो जाएगी. अच्छा, इससे मैं पता पड़ा था that k b both E and B are perpendicular to k, and then we have put these two solutions in third and fourth equation. Then we got k cross E equal to omega b. तो यहाँ क्या था, डेल क्रॉस करना था, डेल की जगह पर आयोटा के आया और डेल ओवर डेल टी की जगह पर आयोटा ओमेगा आया. आयोटा हैज कैंसिल्ड दिस आयोटा. ओके, तो ये इक्वेशन आई. And this gave you the information that B, E and K, these three are mutually perpendicular. ठीक है, तो हमने डेल ऑपरेटर को रिप्लेस किया है आयोटा K से, एंड डेल ओवर डेल टी को रिप्लेस किया है माइनस आयोटा ओमेगा से. ठीक है, अगर इस तरह का रिप्लेसमेंट हम ले आए तो इन्हें यहाँ पे पुट करना बहुत आसान हो जाएगा. ओके, देन अगेन इफ वी टॉक अबाउट दिस इक्वेशन, तो यहाँ दिस इज k वेक्टर, दिस इज E वेक्टर, दिस इज B वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए sin 90 करना पड़ेगा, एंड sin 90 इज 1. तो यहाँ इसे डायरेक्टली मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा जा सकता है, k मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय E मैग्नीट्यूड इक्वल टू ओमेगा इनटू B मैग्नीट्यूड. तो अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखें तो दिस इज द इक्वेशन. ठीक है, डायरेक्शन को हमने कंसीडर कर लिया ऑलरेडी. देन what is E? E will be given by omega by k, है ना, omega by k into B.
और ओमेगा क्या है? ओमेगा इज 2 पाई into frequency, 2 pi nu, angular frequency. Am I right? Yes, So sir. friends, yes. And what is k? Yes. The value of k vector is 2 pi by lambda. Then this will become E equal to nu into lambda into b, which is c into b. C is the velocity of electromagnetic wave or light, right? And what is c? C is 1 by under root of mu naught into epsilon naught. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. So we can put E equal to b upon under root of mu naught epsilon naught. So this is the relation between E and B. And do you know what is E? E is the intensity of electric field. And what is B? B is the magnetic field induction. So we do not call B as the intensity of magnetic field. Intensity of magnetic field is given by H, where B equal to mu naught into H. Okay, so H is known as intensity of magnetic field, and B is magnetic field induction. And these two quantities are a little bit different. Why? Because B depends upon the material. किसी मेटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना इंड्यूस हुआ और वहां पे H की वैल्यू चेंज नहीं होगी. And depending upon the value of H and the material, mu का मल्टीप्लाई हो जाएगा. Then this will give you the magnetic field induction B. तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करनी पड़ेगी. So we can replace this B with mu naught into H, okay, like this. And then this mu naught, this will give you E by H equal to under root of mu naught by epsilon naught. So this is the ratio. और ये इसका फायदा ये है कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में you can tell the fraction of E and H, the ratio of E and H. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे बढ़ रही थी और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, दोनों का रेशो क्या है, दोनों सेम है क्या, या दोनों की वैल्यूज अलग अलग है. ठीक है. So when you find the ratio between E and H, you will get this equation in vacuum. और म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट दोनों कांस्टेंट्स हैं, दोनों की वैल्यू रखते हैं along with the units, then you get 377 ओम. तो इन दोनों का रेशो जो है उसकी यूनिट ओम आती है, एंड ओम इज द यूनिट ऑफ इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस. सो दिस गिव्स यू द रेजिस्टेंस और द इम्पीडेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. दिस इज नोन एज द इम्पीडेंस, वेव इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस. Okay, and this its value is fixed 377 ohm. Is that clear? सर एक बारी वाली इक्वेशन बता दीजिए कहाँ से है, B is equals to mu naught H वाली. Okay, तो ये इक्वेशन, हाँ ये इक्वेशन कहाँ से आई? these are the values, ये इस तरह से डिफाइंड है. ठीक, अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है तो किसी भी पोजीशन पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी देखेंगे वो H होती है, और वहां पर अगर हमने कोई मटेरियल रख दिया या फिर मैग्नेटिक फील्ड कितना इंड्यूस हुआ, इनफैक्ट मैग्नेटिक फील्ड कितना इंड्यूस हुआ जो कि वर्क कर रहा है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ही मूविंग चार्ज पे वर्क करता है, स्टेशनरी चार्ज पर तो वर्क नहीं करता. मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वर्क करता है. तो उस इंडक्शन को फाइंड करने के लिए हम सिंपली उसमें परमिटिविटी का मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, तो दीज आर द रिलेशंस, फंडामेंटल रिलेशन. Yes, sir. ठीक है, तो B equal to mu naught H, it is the fundamental relation between magnetic field intensity and magnetic field induction, and we can use it anywhere as it is. अगर वहां फ्री स्पेस है तो म्यू नॉट का यूज करेंगे, और अगर कोई मटेरियल है जिसकी परमिटिविटी म्यू है तो वहां पे सिंपली म्यू का यूज करेंगे. दैट्स ऑल. ठीक है. अच्छा, और बताओ, एनीथिंग एल्स इन दिस स्लाइड? Because this thing must be understood well, because otherwise you will have to work hard to dot product or cross product with del operator. So this is important, how we can deal with del operator and differentiation with respect to time whenever we are doing something with the solutions of electromagnetic waves. Okay. B is equal to mu naught H कैसे आया था सर, वो बताना जरा. हाँ, ये आया नहीं. दिस इज अ फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी.
ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है। तो हमने ये कंप्यूट नहीं किया, कहीं से निकाला नहीं है, ये इस तरह से डिफाइंड है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ये दोनों डिफाइंड है और इन दोनों का जो रिलेशन है वो इतना होता है। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टेंस है। हाँ, इंडक्शन सपोज हमारे पास एक सोलेनॉइड है, ठीक, उसमें करंट फ्लो हो रहा है। हमारे पास एक कॉइल है कोई कॉपर वायर की, उसमें से डीसी फ्लो हो रही है, तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह से बिहेव करेगी, और उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेट में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटसाइड चारों तरफ कहीं ना कहीं होगा, उसकी इंटेंसिटी होगी अलग अलग, दैट इंटेंसिटी इज एच। लेकिन अब अगर उसी रीजन में हमने कोई मटेरियल पुट कर दिया, सपोज डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिया, तो डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा, डाइलेक्ट्रिक उस इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर देगा। इसी तरह से अगर हमने कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पुट कर दिया तो वो क्या करेगा, उस इंटेंसिटी को जहां जहां पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मास है, हाँ, उसे वो बढ़ा देगा। ठीक, तो कितना बढ़ाया, बढ़ाने के बाद कितना हो गया, कम करने के बाद कितना हो गया, दैट वैल्यू इज नोन एज द इंडक्शन। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो जितना चेंज किया तो ओवरऑल जो वहां पे इफेक्ट होता है उस मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज बी प्लस एच। ठीक है, तो कितना चेंज हुआ, कितना कम हुआ, जो डाइलेक्ट्रिक के लिए थोड़ा कम हो जाएगा तो इंडक्शन कम है वहां पे। ठीक, ऐसे ही कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसके लिए वो इंडक्शन ज्यादा होगा, सॉरी वो डायमैग्नेट। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए वो इंडक्शन ज्यादा होगा। ठीक, तो बी की वैल्यू डिपेंड करेगा उस मटेरियल के लिए म्यू की वैल्यू क्या है। ठीक, तो हो सकता है that mu is greater than mu naught for ferromagnetic material and that is the fact, और diamagnetic material के लिए the mu is less than mu naught। ठीक, and in fact that is negative value। ओके, तो ये इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों का रिलेशन है, इन दोनों में डिफरेंस है। ओके, ठीक है ना? यस सर। ओके, देन और कोई बात, किसी और को कुछ पूछना हो इसमें, कुछ छूटा हो? एंड इफ नो, सर एक बार Yes. ई बाय एच का कंसेप्ट दोबारा। एच का कंसेप्ट, ई बाय एच, ई बाय एच, अच्छा ई बाय एच, ठीक है। तो यहां तक हमने देखा कि ई और बी इन दोनों के बीच का रिलेशन है कुछ, और ई और बी के बीच का रिलेशन ये है, ये वाला। ठीक, लेकिन हम बात कर रहे थे यहाँ पे ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बट बी इज नॉट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर हम कंपेयर करें तो एक जैसी क्वांटिटीज को ही तो कंपेयर करें, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों अगर ये दोनों एक जैसी क्वांटिटी होती तो इन दोनों को कंपेयर कर सकते थे, लेकिन दोनों को एक समय तो कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो इन्हें कंपेयर करने के लिए हम दोनों को ही इंटेंसिटी के फॉर्म में पुट करते हैं, बिकॉज देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्शन। यहाँ पर इस तरह का इंडक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बी को मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जब भी ऐसा करना होता है तो हमें इस इक्वेशन का यूज करना होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एच। ठीक है, तो बी को रिप्लेस कर दिया हमने म्यू नॉट एच से, और उससे ये पूरी क्वांटिटी थोड़ी चेंज हो गई, ये हो गया E इक्वल टू एच मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। और इस तरह से अगर हम दोनों को कंपेयर करें, दोनों का रिलेशन निकालें, दोनों का रेशो निकालें, then that ratio will be E by H and that will be equal to under root of this thing, and this is a constant for vacuum। अगर वैक्यूम ना हो, कोई मटेरियल हो, तो उस मटेरियल के लिए मटेरियल स्पेसिफाइड कुछ वैल्यूज होंगी म्यू नॉट की और एप्सिलॉन नॉट की, तो उसके लिए ये वैल्यू कुछ और आएगी, डिफरेंट आएगी। ठीक, एंड द यूनिट ऑफ दिस इज ओम। अगर हम इन दोनों की यूनिट भी रख दें तो वो यूनिट दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लेके ओम आती है, and ohm is the unit of impedance, hindrance, or resistance। So this shows that even vacuum applies some impedance in the propagation of electromagnetic wave। ठीक, उस समय तक जब तक मैक्सवेल ने ये वर्क किया था तब तक ये प्रूव नहीं हुआ था कि ईथर जैसा कुछ नहीं होता। ठीक, तब ईथर का कंसेप्ट बहुत आगे था, और इससे ईथर के कंसेप्ट को थोड़ी हेल्प मिली थी कि वैक्यूम नहीं है, ऐसा नहीं है, वैक्यूम में कुछ भी नहीं है, देयर इज अ मटेरियल नेम्ड एज ईथर। और इवन अभी भी ईथर के बारे में इतना हमें मालूम है कि ईथर को प्रूव नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा कोई प्रूफ कि ईथर जैसा कुछ नहीं होता फिलहाल भी।
लेकिन ईथर जैसा कुछ होता है ये भी प्रूव नहीं हुआ। तो ये जो वेव इम्पिडेंस है फ्री स्पेस का, ये कहीं ना कहीं उस हाइपोथेसिस को फॉलो कर रहा था मैक्सवेल के टाइम। So this is known as wave impedance of free space, and the wave impedance means the ratio of electric field intensity and magnetic field intensity. Okay, is that clear? Okay, sir. Thank you. अच्छा, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं किसी डाइलेक्ट्रिक की। डाइलेक्ट्रिक का मतलब होगा ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज जिसमें नहीं है। ठीक, वुड हो सकता है, ग्लास हो सकता है, ठीक, इस तरह के मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो नहीं करती। ठीक, तो उसमें मैक्सवेल इक्वेशन का क्या रोल होगा? तो उसके लिए भी हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ जे एंड रो। लेकिन हाँ, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसमें चार्ज डेंसिटी तो है ही नहीं, सो रो इज अगेन जीरो, है ना। एंड व्हाट अबाउट जे? वुड में से कभी करंट तो फ्लो करती नहीं है, सो जे इज आल्सो जीरो। तो इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन है डिफरेंस। वैक्यूम इज द वैक्यूम। तो दोनों में डिफरेंस है, वैक्यूम में और मीडियम में। वैक्यूम मींस देयर इज नथिंग इन दैट स्पेस, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब वहां कुछ मटेरियल है। अगर मटेरियल है तो उसकी प्रॉपर्टीज, वो किस तरह से बिहेव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में, वो अलग होगा वैक्यूम से। एंड दैट बिहेवियर इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ एप्सिलॉन एंड म्यू। ठीक, वैक्यूम में जो एप्सिलॉन नॉट था उसे अब हम एप्सिलॉन से रिप्लेस कर देंगे और म्यू नॉट को म्यू से रिप्लेस कर देंगे, वेयर एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर। दिस एप्सिलॉन आर इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। Epsilon r is always greater than 1, and mu is equal to mu naught multiplied by mu r. Mu r is relative permeability, और इसकी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। ठीक है, नेगेटिव होने का मतलब होगा वो डाइलेक्ट्रिक डाईमैग्नेटिक मटेरियल है, पॉजिटिव होने का मतलब होगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इज दैट क्लियर? तो म्यू आर की वैल्यू डिपेंड करती है। अच्छा, म्यू आर इज 1 फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अगर मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में कोई रेस्पॉन्स ही नहीं देता है, देन म्यू आर विल बी 1। ओके, तो अगर हम ये वाले डेफिनेशंस पुट करते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशंस में, देन वी गेट दीज इक्वेशंस। ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन आर एज इट इज। फोर्थ इक्वेशन में म्यू इनटू एप्सिलॉन हो गया, जबकि वैक्यूम के साथ म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट था। तो लेकिन अब हमें दिख रहा है कि सारी सब कुछ सारी इक्वेशंस एक जैसी हैं, इसका मतलब सॉल्यूशंस भी सेम ही होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने वैक्यूम में किए थे। तो डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस होगा जहां पर भी म्यू और एप्सिलॉन अपीयर होते हैं। ठीक, म्यू और एप्सिलॉन अपीयर होते हैं जहां पे वेलोसिटी की बात की थी। तो देखते हैं, चलो। तो सॉल्यूशंस के लिए हमने क्या किया था? वहां पर हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया था थर्ड इक्वेशन का, फोर्थ इक्वेशन का, और हमारे पास ये इक्वेशंस आई थी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आई थी, मैग्नेटिक फील्ड के लिए इक्वेशन आई थी। ठीक, और इन्हें हमने सॉल्व करके सॉल्यूशंस निकाल लिए थे। सॉल्यूशंस विल बी द सेम। अब वेलोसिटी के लिए हमने किया था 1/v² इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ म्यू इंटू एप्सिलॉन हो जाएगा। सो दिस विल गिव यू म्यू और एप्सिलॉन की वैल्यू अगर पुट कर दें तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आए। इनकी वैल्यू अगर पुट की तो एक्स्ट्रा टर्म क्या है? डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो ये कुछ इक्वेशन आएगी। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम is equal to the velocity of light in vacuum divided by under root of mu r into epsilon r. This c upon this. अच्छा, एप्सिलॉन आर इसकी वैल्यू 1 से कम हो नहीं सकती, और अगर हम किसी ऐसे मटेरियल की बात करें जो कि नॉन मैग्नेटिक है, then mu r will be 1 and epsilon r is always greater than 1. So what do you think? v हमेशा c से कम होगा या नहीं? Yes, sir. कम कम होगा। होगा, Okay. कम So होगा। velocity of electromagnetic wave in a dielectric medium is always less than the velocity in vacuum. ठीक है, और इन दोनों का रेशो क्या होता है? इस रेशो को बोलते हैं the refractive index of the material, and it will be n equal to c upon v is equal to under root of mu r epsilon r, and this is always greater than 1, right? So by this we can prove that the refractive index of any material cannot be less than 1. It is always greater than 1. तो अगर हमारे पास कोई ग्लास है
ट्रांसपेरेंट ग्लास, ठीक, दैट इज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ज्यादा ही, इसका मतलब उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट हमेशा कम हो। ओके, इज इट फाइन? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so when the discussion on vacuum and a dielectric medium is completed, then we can move on to the conducting medium। और conducting medium के लिए ऐसा करते हैं, conducting medium को define कर लेते हैं। What is the conducting medium? What is the definition? Definition में हम रो और जे इन दोनों की हेल्प से ही डेफिनेशन दे रहे थे, वैक्यूम की और डाइलेक्ट्रिक मीडियम की, है ना। So what do you think? What is the charge density in a conducting medium? Conducting medium हो सकता है copper wire या फिर a piece of iron. Okay, so conducting medium में what is the current वो charge density? Charge density क्या जीरो होगी या पॉजिटिव, इसकी वैल्यू नॉन जीरो होगी, बस इतना। नॉन जीरो सर। नॉन जीरो, ठीक है। और कोई ट्राई करो। एक आंसर आया नॉन जीरो होगी, वो नॉन जीरो शायद इसलिए आया क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में वो जीरो था, वैक्यूम में भी जीरो था, लेकिन अब तो हमारे पास कंडक्टिंग मीडियम है तो शायद इसमें चार्ज हो। लेकिन क्या तुमने कभी देखा है कि कोई भी मटेरियल, कोई भी वायर जीरो ही होगी सर। यस, वो जीरो ही होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी मटेरियल जिसमें हम जैसे ही कोई एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन वायर में, एक इलेक्ट्रॉन किसी एक एंड से एंटर कराते हैं, वो इलेक्ट्रॉन दूसरी एंड से बाहर निकल जाता है टू फ्लो द करंट। अगर ऐसा नहीं होता तो उसमें चार्ज इकट्ठा होता जाता कैपेसिटर की तरह से, ठीक, और करंट बाहर नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब भी हम किसी वायर में कोई इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कराते हैं, दैट इलेक्ट्रॉन फ्लोज अवे फ्रॉम सम अनदर प्लेस, और यही रीजन है कि हमारे उस वायर में करंट फ्लो कर सकता है। सो चार्ज डेंसिटी इज ऑलवेज जीरो इन अ कंडक्टिंग मीडियम। सर अगर कोई सॉलिड कंडक्टिंग सरफेस है और हमने चार्ज दे दिया उसकी बॉडी पे, तो सर तो आ जाएगा उसका चार्ज क्या हो जाएगा? चार्ज उस पर इकट्ठा हो जाएगा, हाँ, उसके सरफेस पे आ जाएगा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। लेकिन वो जो मटेरियल है, वो मटेरियल कहीं तो कनेक्टेड होगा, एयर में तो कहीं होगा नहीं। तो सर उसको आइसोलेट कर दिया अगर हमने, अगर आइसोलेट कर दिया, आइसोलेट करना इतना पॉसिबल है नहीं। अभी हम आगे और देखेंगे कंडक्टिंग मीडियम को, हम दोबारा से तुम्हारा ये वाला जो मेथड है चार्ज करने वाला, इसे भी हम दोबारा देखेंगे कि ऐसा क्यों है, चार्ज हमेशा जीरो क्यों होता है, ठीक है, इसे भी हम देखेंगे अभी। हमारे सर इंडक्शन से हम इजीली करा सकते हैं उस पे। हाँ बिल्कुल, और ये एक्चुअली जो तुम बात कर रहे हो ये कैपेसिटर के लिए ट्रू है, ठीक, दिस इज ट्रू ओनली फॉर कैपेसिटर। अभी हम देखेंगे, हमारे पास एक मैथमेटिकल तरीका है इसे देखने का कि चार्ज जीरो होता है या नहीं होता है, ठीक है। कि हम अगर किसी मटेरियल को चार्ज करा दें, सपोज रो नॉट वैल्यू तक चार्ज करा दिया, अब जैसे जैसे टाइम एलैप्स होगा उस चार्ज के साथ क्या होगा, क्या वो रो नॉट का रो नॉट ही रहेगा या डिक्रीज होगा, ठीक, इसे भी हमें देखना है, ठीक। एंड एक और एम्फेसिस ये इस बात पे देनी है कि जब भी हम किसी मटेरियल की बात कर रहे हैं तो उस मटेरियल में चार्ज है या नहीं, ये हम बात करते हैं हमेशा उसके अंदर मास में। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फ्लो कराना है, तो वो अंदर मास में ही तो फ्लो होगी, ठीक है। तो दिस इज द थिंग which we need to discuss on in the next lecture, ठीक। So for this time the conducting medium is defined by zero charge density and zero current density. Is it so? करंट डेंसिटी जीरो होती है या नहीं? नो। सो नॉन जीरो करंट डेंसिटी एंड जीरो चार्ज डेंसिटी। और अभी हम देखेंगे कि चार्ज और करंट किसी कंडक्टिंग मीडियम में किस तरह से बिहेव करता है। सो वी हैव ओम्स लॉ फॉर कंडक्टिंग मीडियम फॉर current densities, and there is another method to show that there is no charge on conducting medium in the next lecture, ठीक है। तो अभी हम एंड करते हैं यहाँ पर, और अगर किसी को कुछ क्वेरी हो आज के लेक्चर में तो वो पूछ। हाँ, एनी डाउट? तो फिर एंड करते हैं अभी।